જાહેરમાં આ પાપ દિયો બાળી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું. અમેરીલેટિવને શોભવવા મજબૂત કરેલા જગ પાયા અનંત ભવતી દેહ ધ્યાસે પૂદગલમાં પ્રપંચે મોહાયા હાલત છે નોદારી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું. અમે કળિયુગી ક્રૂર વિછુડા પ્રાકૃત અવગણના અંકોડા મન ડંકિલ વિસ્મય વિકૃતા ક્રૂડા કરતુતી કઠોરા હવે પસ્તાવો કરું છું રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું. સુણો ચંદાજીનું સ્તવન અમે સુણી ગાતા ચૈત્ય વંદનમાં અજ્ઞાન ક્રિયા પહેચાન વિના તમે સફળ કરી ભક્તિ ક્ષણમાં સિદ્ધ કૃપા અણધારી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું. અમે કળિયુગના જલતા જીવડા દુઃખ દાવાનળમાં સેકાઈ ગયા ત્યાં રણમાં મીટી વિરડી સમ દાદાજી અમને મળી ગયા અહો મુક્તિ પથગામી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું. મુજ વિકૃત કુવા પાણી પર ભ્રાંતિની બાજીતી સેવાળ દાદાએ પથ્થર નાખીને તેને દૂર કરી દીધી તત્કાળ અહો વંદન વિજ્ઞાની રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું. ગંધાતા ગાર્બેજ કન્ટેનરે અકબંધ જ રાખ્યા પ્રાણીને તેમાંથી આત્મા જુદો કરી મહાત્મા કંડાર્યા જ્ઞાનીએ હે મુક્તિ કૃપા ન્યારી રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું. મારી કાળી કોરી પાટી પર દાદાએ લખાવ્યા કખ મુજ સ્વચ્છંદ વિપરીત બુદ્ધિએ જાતે ઘૂંટી કાઢ્યા ABC
दुर्बुद्धि दौड़ाई। रात दिवस मन रहे स्मरण तमार। અમે બેરા બુદ્ધિની સાળિયા મોનિટર ત્યાં તાલાખ વરસ માની બેઠેલા બહુ ભણિયા હકીકતમાં છઈએ ડબ્બુ નઢ આ ભૂલને દ્યો ભાંગી। રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમા। અમે ઊંધો માટલું રાખીને રિયલમાં ખાધી બહુ ખોટું। સત્સંગની વરસા ઝીલી નહીં હવે ક્યાં જઈને માથું ફોડું। દ્યો સ્વચ્છંદ પીગાળી। રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું। અમે ડબ્બા મ્યુનિસિપાલિટીના કચરા ભર્યા ખરીદીમાં ચારે બાજુથી માલ સડ્યા દાદાએ જગાડ્યા ભીતરમાં છુકડીયુગી કુપાત્રી। રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું। ઓહો સિમંદર સ્વામી। રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું। મને દ્વેષ ને રાગથી છોડાવો અજ્ઞાતિ મિર અંધાર હરો। સ્વને કસાયથી વિમુક્ત કરો શુદ્ધ કેવળ પદમાં સ્થિર કરો। અહો કરુણાધર સ્વાસી। રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું। અમે આજ સુધી અત્યંત નજીક આત્માને ઓળખી શક્યા નહીં। મળવિક્ષેપે આરોપી અહમ ગતિ ચાર ભટકિયા કરી ખુદ સૈ મુજ મૂળ જોખમદારી। રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું। પોતે પોતાથી જ અણજાણે બાવો મંગળ ભટક્યો ચૈ ચૈ પાતાળથી આકાશે 14 લોક। કપડા બદલી રજળ્યા કઈ જય મહી કોરેજ કૈડે ઉદય। રાત દિવસ મને રહેજો સ્મરણ તમારું। પ્રભુ રહેવું તુમ ચરણાશ્રિત પ્રીત્યાર્થી સુખ વ્યાદેહાદિ બેવિરહી નૈણાના સુખ।
વહી રહી છે ભરેલી અશ્રુ નદી, અહો અસંગ સ્નેહાંગી, પ્રાણ વિવસની સુણજો વ્યથિત પુકારું, રાત દિવસ મને રહેજો જો સ્મરણ સ્મરણ તમારું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ દક્ષ, જય સચ્ચિદાનંદ संतोषानंद जी। જય સચ્ચિદાનંદ. श्री मंत्र बुलाए। નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચ નમસ્કારો, સૌવ પાવકપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સંવેસીમ, અગિલાણમ ચ સૌવેસ્તિમ, પડમમ અવૈ મંગલમ. પરમમ વૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ જય શિવાય. સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. નીચું કર્યું. मोनिका, any prayer? हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Yeah. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दक्ष। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, हम मैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे
भी है कच्चे। फिर भी है अच्छे। दादा कंफ्यूज। ओके करीज मोनिका जय सचिदान। एक ही मिनट। ओके जिया कंप्लीट एक करो काम करे। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है फिर कच्चे, भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। 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 बहुत अच्छी बात। जय सच्चिदानंद दक्ष जय सच्चिदानंद। हे श्रीआत्मा भगवान आपल्या गो दक्ष लगे। हे श्रीआत्मा गण परमानेंट दक्ष टेम्पररी। हे श्रीआत्मा गण फ्री लो दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके क्या होमवर्क था मोनिका? आप तो कोई है क्या आपके साथ अकेले? खुशी है। खुशी खुशी तो क्या हमको उसको तो हम पसंद नहीं तो क्या अनविजिबल है, करेंगे अभी? नहीं था अनविजिबल है। संतोषानंद ये चेन्नई वाले तो अभी बहुत बिजी हो गया है अपने को भी अच्छा नहीं लगता है उन लोग को। लगता है कि हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उन लोग का। नहीं नहीं नहीं। नहीं, नहीं तो एक बहुत मंडे सिंसियर है, बहुत सिंसियर है। संतोषानंद मंडे आते नहीं हैं नहीं, और बाद बहुत में सिंसियर है गुम उनको। होता है। दादा हाँ? वो रक्षाबंधन के हाँ लिए तो मामा मंडे के यहाँ पर चली गई। अच्छा मामा के घर गया तो नहीं मम्मी के नहीं साथ। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ। क्या है नहीं, और वो मोनिका ऐसा बोलने का कि हम हाजिरी पूरा लेते हैं मंडे, यानी पूरा हफ्ता आ गया। नहीं ये खुशी ऐसा है संतोषानंद जी। मंडे मंडे हाँ मंडे 4-5 दिन खाती है बाद में नेक्स्ट मंडे खाती है खुशी। हाँ, हाँ वो खुशी उपवास कर लेती है। हाँ सारा दिन सारा वीक। ए वो क्या करता है अनुज? वो नहीं, वो लोग वो अलग अलग प्रकार के उपवास करते हैं, खाने का नहीं करते हैं। वो कोई दिन गुस्सा नहीं करने का उपवास करते हैं, कोई ओ दिन हेल्प करने, किसी को हेल्प करने का वो उपवास करते हैं, हेल्प करने का रखते हैं। फिर कोई दिन किसी के सामने नहीं बोलने का ऐसा उपवास रखते हैं, किसी दिन किसी को दुख नहीं देने का ऐसा उपवास रखते हैं। ओ तो ये सब बाकी के दिन ऐसे उपवास रखते हैं वो अलग अच्छा अलग। इसलिए नहीं आती है। ओके ओके। ए अनुज हाँ, का वो क्या उपवास वो उपवास कर रखते हैं ना, तो थोड़ा। अनुज। ओके अनुज अनुज का नहीं क्या कुछ हाल है? भी। अनुज ठीक है। अनुज कल आएगा। अभी उसके नानी के घर पर है। नानी के घर तो बोलना शुरू किया कि नहीं करते बोल? वो बोल रहा है, पीछे पीछे बोल रहा है, बट फुल कंप्लीटली सेंटेंस नहीं बोलता। अच्छा थोड़ा थोड़ा बोलता है। हाँ बोलता है। ओ तो आ जाए। ओके तो आ जाए। ओके तो होमवर्क क्या था जी यार? हाँ वो सिंसियरिटी का देखना था और क्या देखना था? सिंसियर है या नहीं हम हमारी स्टडी को लेके और health से। आपको देखने का था आपका टाइम हाँ कहाँ सिंसियरिटी वेस्ट। आपका सिंसियरिटी पॉजिटिव दृष्टि। ओके बोलो आपने क्या किया 2 दिन? हाँ जय सच्चिदानंद। रक्षाबंधन के दिन तो सिंसियरिटी नहीं रही थी क्योंकि मामा के घर भी मतलब जाना था और बुआ के घर भी जाना था। लेकिन संडे को मैंने कवर कर लिया था। मैंने 10 आवर्स पढ़ाई कर ली थी। ओह वेरी और गुड वेरी गुड। हाँ और पॉजिटिव दृष्टि नेगेटिव दृष्टि। हाँ पॉजिटिव दृष्टि मतलब अ, रक्षाबंधन के दिन तो पॉजिटिव दृष्टि थी लेकिन रविवार को जब पढ़ाई भी करनी थी मतलब मुझे ऐसा था कि मैं पूरा करूंगी और मम्मी ने काम बोल दिया तो कर तो लिया लेकिन भाव बिगड़ गया था। ओके तो आपको मगज में बुरा लगा था मन में? हाँ हाँ ऐसा लगा। ओके दक्ष आपने क्या किया?
दादा, राखी वाले दिन तो मामा मामा आए थे देवास। तो दादा, उस दिन तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, पर कल दादा मेरा किसी से भी टकराव नहीं हुआ था। ओके। मोनिका, जय आपका सच्चिदानंद। टाइम किधर जाता है? सिंसियरिटी में जाता है कि? नहीं दादा, अभी छुट्टियां, इसलिए बिल्कुल नहीं सिंसियर हूँ। और नहीं, छुट्टियां तो सिंसियर, कब है? ओनली फ्राइडे था ना? हाँ। नहीं नहीं, मेरी अभी कॉलेज ओपन नहीं हुआ है, August 20 को होगा। तो सारा दिन क्या करते हैं आप? सारा दिन मम्मी की हेल्प करती हूँ, कभी फोन देखती हूँ, दुकान जाना पड़ता है, पापा बाहर जाते हैं, तो सिर्फ यही चलता है। टाइम ही नहीं मिलता है दूसरा स्टडी करने का, राइट? स्टडी करने के लिए अभी कॉलेज ओपन होगा तो वो बेसिक से लेकर वो सिखाएंगे, बाकी नहीं। नहीं, अभी तो आपको किसी को पूछने का क्या चल रहा है न? अभी हम्म। देखो, ये कौन, अनन्या दीदी है, वो भी अभी हम्म। पढ़ती है। वही आईटी में ही पढ़ती है। हाँ। उसके साथ बातें थोड़ी करना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या। तो खुशी, आप हम्म। हाँ। आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। सिंसियर आपका टाइम में सिंसियरिटी है कि नहीं? और नहीं है। नहीं है। इधर नहीं है। वो और टाइम में सिंसियरिटी का मीनिंग क्या होता है? हम उस समय में जो डिसाइड किया वो नहीं करते कि वो सभी। ओरिजिन की बात करो ना, 3 गोल है। उस और ऑलवेज फोकस ऑन दैट ना। और हाँ। वो उसमें देखता है आपका टाइम कैसे सिंसियर में जाता है, नहीं जाता है। हाँ। हाँ। तो अभी बोलो, टाइम में सिंसियरिटी मीन्स व्हाट? स्टडीज में सिंसियर थी मैं, हेल्थ में नहीं थी, और दादा के ज्ञान में भी सिंसियर नहीं थी। ओके, सेंसियर में सिंसियर। व्हाट इज द गेज? थर्मोमीटर क्या है आपका? मेरा महीनों में थर्मामीटर क्या है, समझ ही नहीं दादा हाउ डू क्या। हाउ डू यू नो you're sincere in study? मैंने जो भी होमवर्क स्कूल से दिया था वो कंप्लीट कर दिया, और फिजिक्स में भी मैंने रिवर्शन किया था। तो ये फुल टाइम हो गया? दूसरा कुछ स्टडी करने का होता नहीं है? एक्स्ट्रा स्टडी हाँ, वही किया था, एक्स्ट्रा स्टडी। करते हैं कि नहीं करते? तो टाइम यू टू जोट इट डाउन ना। और मस्ती में कितना टाइम जाता है मोबाइल में? आज हाफ एन आवर गया था, हाफ एन आवर 45 मिनट्स। क्या करते हैं मोबाइल में? मोबाइल देख रही थी, दोस्त के साथ बात कर रही थी मेरी। वो लिमिट रखा है? नहीं। आ, नहीं। तो सिंसियरिटी कैसे हो सकती है टाइम में? हम्म? ये आप टाइम मैनेज करते हैं अच्छी तरह से? जी हाँ। हाँ, हाँ, या हाउ डू यू होता नो? है। कभी कभी ब्रेक हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफली हो जाता है। ओके, ब्रेक हो जाए तो कवर कर होता है ना। हाँ, कवर कर लेते हैं। हम्म। तो अभी उसका गेज है, हाउ यू नो यू गोइंग टू गेट 90 प्लस इन योर एग्जाम? जी हाँ। हाँ, हाउ डू यू नो यू एक विल मिनट। गेट 90 प्लस इन योर एग्जाम? एग्जाम तो मतलब अभी, एग्जाम तो दूर है, बट आई एम स्टिल आस्किंग यू। हाँ, अब मतलब मेहनत तो करूंगी, फिर देखा जाएगा। नहीं करूंगी कि तो यू आर नॉट डूइंग इट। वन थिंग, सेकंड थिंग इज, आपका टेस्ट होता है उसमें कैसा आता है? 90 प्लस आता है कि नहीं आता है? हाँ, मतलब अभी तो कोई अभी टेस्ट नहीं हुआ था।
और जो मतलब रोज का होता है उसमें तो आ जाता है। ओके, तो यू मस्ट ट्रैक इट અને हाँ। ये तो गेज कि आपको 90 प्लस लेने का है कि 85 लेने का है कि कितना लेने का है. ओके, एंड हाँ। then you have to gauge it every day, otherwise keep on improving. Okay, संतोष आनंद जी, आपने सुना. अभी थोड़ी बातें करो, बाद में एंड में दीपक दीपक दादा को भी बोलेंगे कमेंट देने का. सिंसियरिटी जो है ना, वो टाइम टेबल अपने बनाएंगे, उनके साथ सिंसियर रहेंगे ना, तो ही काम है. सिंसियर क्यों नहीं रह पाते हम? क्योंकि हमने जो टाइम टेबल बनाया है ना, लेकिन वो उसके ऊपर हमारा क्या बोलते हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो इम्पोर्टेंस है नहीं. हमने बनाने के लिए बना दिया है टाइम टेबल, फॉलो करने के लिए, लेकिन वो उसका उसका इम्पोर्टेंस अभी हमने समझा नहीं है कि ये टाइम टेबल क्यों बनाया है हमने, और उससे हमें क्या फायदा होने वाला है. जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक सिंसियरिटी नहीं आएगी. हम्म। हमें नुकसान, हमारे टाइम टेबल से के बाहर निकलते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है वो हमें समझना है, और टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो उसमें हमें क्या फायदा मिल रहा है, ये हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो अपने आप सिंसियरिटी बढ़ती जाएगी. अभी अभी सिंपल सा खुशी ने बताया ना कि वो मोबाइल देखा, फ्रेंड के साथ बात किया. वो बात बराबर है, बात किया, मोबाइल देखा, लेकिन मोबाइल देखने के बाद हमारा कॉन्सेंट्रेट बढ़ा, हमारी एकाग्रता बढ़ी के टूटी? दोस्त के साथ बात तो किया, कोई फिर बात नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारा चित हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर लगता है कि नहीं लगता है, वो देखने का, तो हमें समझ में आएगा कि ये हमारे लिए ये फायदा कारक है कि नहीं फायदा कारक. क्योंकि वो फिर हम पढ़ाई करने बैठेंगे या कुछ भी जहाँ पे हमें चित्त की एकाग्रता चाहिए वैसा काम करने बैठेंगे ना, तब वो हाजिर नहीं रहेगा चीज. तो ये हमें हमारे हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए. वो नुकसान दिखाई देगा ना, तो फिर वो चीज अपने आप अवॉइड होती जाएगी, और हमारी जो जो गोल बना है उसमें सिंसियरिटी बढ़ती जाएगी. हम्म। तो उससे हमें क्या, अभी अभी हम एक एक नोटिंग करेंगे ना कि भाई अगर मैंने बनाया है टाइम टेबल, उसको मैं फॉलो नहीं करती, तो मुझे क्या क्या नुकसान होता है वो नोटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा. हमारा आज के दिन में हम्म। हमने जो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं फॉलो किया, तो हमें क्या क्या नुकसान हुआ वो हम नोटिंग करेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा नुकसान कितना होता है, और वो नुकसान दिखाई देगा ना, तो अपने आप हम सिंसियर होते जाएंगे. तो इतना रखना अपने अपने जो भी नक्की किया है ना, तो उससे बाहर निकलते तो क्या नुकसान होता है वो नोटिंग करो, तो हमें समझ में आ जाएगा. तो फिर कोई और हम्म। बताए ना बताए, हम खुद को रिपेयर करेंगे, खुद ही खुद को रिपेयर करते जाएंगे. दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम खुद ही खुद को रिपेयर करते जाएंगे. और ये सीख बहुत बड़ी है. कोई हमें बोले और हम रिपेयर होए तो उसमें मतलब क्या है? हमें खुद को समझ में आना चाहिए कि ये गलत है, और वो गलती निकलती जाए तो सही, अच्छी बात है. और कोई चलो, बोलते हैं हमको, हमारी गलती दिखाते हैं, तो उसको वेलकम करना है हमें. हम्म। लेकिन वेलकम नहीं होता है ना. नहीं होता। हाँ, तो वो वेलकम इसलिए नहीं होता है कि अभी हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है,
हमें अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा घर मिला है, उसकी वैल्यू नहीं हो रही है हमें। आप बाहर की दुनिया में जाते हो ना, बाहर ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कुछ बाजार जाते हो, तो वहाँ कई कई तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना। तो सबको अलग अलग प्रकार की मुश्किलें होती है, वो हम देख पाते हैं, वो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हम देख तो पाते हैं ना कि कोई आंख बिना का है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, किसी का हाथ नहीं है। तो सबको किसी के पास पैसे नहीं है, कोई भीख मांग रहा है, कैसे कैसे लोग, कई कई तरह के लोग दिखाई देते हैं। तो उससे उसको कंपेयर करके हम देखें तो हमें कितना अच्छा मिला है, तो उसका सही तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए हमें। करना चाहिए। क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारा पावरफुल होना, ऑब्जर्वेशन पावरफुल होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन दादा भगवान बताते थे कि हमने पूरा एक एक संयोग में अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया है और उसका फिर तारण निकाला है कि ये चीज करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है। दादा भगवान हर 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 समय ऑब्जर्वेशन करके उसका तारण निकाल लेते, और तो तारण निकलता है तो परिणाम दिख जाता है, हाँ ये करेंगे ना तो उसका परिणाम ये आएगा, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमको शोभा नहीं देता है ये, तो अपना आगे बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन है, तो खुशी आपको तारण आपको कैसे निकालेगा अभी? Hmm? How would you gauge that you are making a mistake? And ये sentence सारे क्या बोलता है, then you to get out of it, ना? ओके जिया, जिया आप क्या करेंगे? हाँ, मैं पहले तो इम्पोर्टेंस समझूंगी कि ये गोल, मतलब गोल्स की इम्पोर्टेंस, और फिर उसको उसमें सिंसियर रहूंगी ज्यादा। Right, see that is और अगर you have to write your goal first. आपको हाँ, कितना स्टडी में क्या करने का है, कितना मार्क्स लाने का है, कैसे करेगा, ये करेगा वो, हेल्थ में क्या करने का है, सत्संग में क्या करने का है। ओके, देन यू देन गेज कर भाई, आज मैंने ये नहीं किया बट मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया। ओके, आज मेरे पास हाँ, टाइम नहीं था, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जब होम बहुत मोड आता है, देन यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, दैट इज ओके। ओके, देन यू गेजिंग योरसेल्फ, सेल्फ एग्जामिन करते हैं कि हम किसे किया। तो खुश खुशी आपका गोल क्या है 11th में? हाँ, गोल स्टडीज में पूछ रही। स्टडी में 95% स्कोर करने। वेरी गुड। अब लिखा है आपने बेडरूम में चिटा है कि हाँ, 90, आई वॉन्ट 95%? आप स्टडी करते हैं नहीं, उधर बेडरूम में हैव यू पुट अ स्टिकर? तो कैसे रिमाइंड करेंगे? चलो दीपकांत जी। या जैसे चिदानंद सी, एक बात कैसा है, आप लोगों का गोल तो पक्का है। अभी वो गोल एकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं। एक बात डिसाइड करना ही पड़ेगा। आई बिलीव डिसाइड हो गया है, वो तो गोल डिसाइड हो गया है। चलो 95% है, और जिया का भी ऑलमोस्ट लाइक 95% ही है। उसको डॉक्टर होना है आपको। हाँ, यू हैवंट टेकन बायोलॉजी ना खुशी? नहीं। हाँ हाँ, तो आपका चलो हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए आपका गोल है, और वो भी 95%, यानी ऐसा ही होना पड़ेगा तभी अच्छा होगा। तो एक बात अंदर से फिट कर देना है, फोन और गोल। अगर आपको फोन चूज करना है, नो गोल, फॉरगेट इट।
आपको लगता है मैं हाफ एन आवर देखती हूँ, 45 मिनट देखती हूँ, 15 मिनट देखती हूँ, तो देयर इज नो लॉस, इट्स फाइन। नो, उसके बाद आपके अंदर दिमाग में जो चलता है ना, वो बहुत डेंजरस है। सोचो आप, मेक एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इवैल्यूएशन, खुद का ही इवैल्यूएशन करो कि ये जो आप 15 मिनट भी देखते हैं ना, तो उसकी असर आपको क्या होती है। जो छोटे बच्चे लोग ये देखते हैं, कुछ छोटी देखती है, फाइन, उसको अभी वैसे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको माफ करेंगे। बट आफ्टर 9th स्टैंडर्ड, नो एक्सक्यूज, दैट मीन्स आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, अगर उनको कुछ करना है, फिर झाड़ू पोछाई लगाना है, तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है, सोचने का है। फोन और नो गोल, इफ गोल देन नो फोन। और आप 1 महीने के लिए उसको एक्सपेरिमेंटेशन में रखो, कि आप समझो 1 महीने तक फोन कॉल करने के लिए यूज करने का, वो कोई गार्बेज देखने का नहीं। आप, और ऐसा है ना, ये हमारा मन कैसा है, इसको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, और वो 15 मिनट का भी एंटरटेनमेंट मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि फ्रेश हो गए। तो वो 15 मिनट के बाद आपके अंदर कितना टाइम तक वो चलता है। और तो और, नेक्स्ट टाइम जब आपके हाथ में फोन आता है ना, तो आपका वहीं से कंटिन्यू होता है, यू विल ट्राई टू लुक फॉर दैट। आप सोचो, तो ये अगर आपको आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इधर लिख दो, नो फोन, ओनली फॉर कॉलिंग। क्योंकि ये जो भी हम देखते हैं ना, फोन में, टीवी में, वो इतना एडिक्शन वाला है, एडिक्टिव है, कि नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे ना, तो यू विल ट्राई टू लुक फॉर दैट। और एक बात समझ लो कि ये हमारे लिए बहुत ही जोखिम वाली बात है। मैं तो कहता हूँ, अगर आप थोड़ा कुछ भी खेल लेंगे ना, फिजिकल गेम, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो हमारा दिमाग चलता नहीं है। आवर माइंड ऑलवेज लुक्स फॉर लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, बोलते हैं उसको, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। और ये फोन ऐसा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ वाला है कि वहां कोई रेजिस्टेंस, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, ओपन करो एंड यू आर इनटू इट, ऐसा है। दीपक दादा। तो हाँ, हाँ, वो तो क्या है, जब 2 मिनट 5 मिनट कुछ करने का था, नॉर्मली हाथ किधर जाता है? फोन पे। दादा। फोन पे ही जाता है। फ्री हुआ कि फोन पे जाता है। फ्री होता है तो फोन पे जाता है। रियली, ये आप सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लता मंगेशकर जो सिंगर है ना, उनको क्लासिकल सिंगिंग में जाना था। यू नो व्हाट इज क्लासिकल सिंगिंग? मींस बेस्ड ऑन रागास। उसको क्लासिकल सिंगिंग यानी जो ये सब गाते हैं ना, बट शी हैड प्रॉब्लम एट होम, जिसके कारण शी हैड टू अर्न मनी। इसीलिए उनको बॉलीवुड में ही प्लेबैक सिंगर का काम करना पड़ा फॉर years टुगेदर, ऑलमोस्ट लाइक शी वॉज द ओनली पर्सन अर्निंग मेंबर एट होम। समझ में आया? आपको तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बट उनका जो ड्रीम था ना, टू बिकम क्लासिकल सिंगर, वो कभी फुलफिल हुआ नहीं। अभी आपको तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, और यही आपका गोल है। तो इफ यू वांट टू स्टिक ऑन टू द गोल, देन नो फोन। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखो आप, ठीक है? वेरी गुड। चलो कल के एंड लिए लेट अस एक्सपेरिमेंट बी सिंसियर के टू योर आप। सेल्फ, ये या 1 महीने या के लिए चेक करो। हाँ, हाँ, गो अहेड या इट विनीत इज अगर। वेरी गुड। आई टेल यू, मेरा एक्सपीरियंस लास्ट ईयर 4 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। ओके, द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। हम
जब छोटे थे ना उसमें जाने का, 8 बजे सो जाने का, 4 बजे उठने का। ओ इट वाज सो वंडरफुल। नो नो फोन अनलेस डायर और हमारा नीड। वर्स्ट टाइम था, ये तो क्या। हमारा वर्स्ट टाइम था बिकॉज यू डिडंट कम ऑनलाइन। Yeah, that's true also. But it was so wonderful. Yeah, you wouldn't believe. Okay, चलो देखते हैं कल। कल तो चेन्नई वाला नहीं आएगा, तो जिया और अरे डस्टी दादा हो। आएंगे। कु- आएंगे। खुशी तो नहीं बोलती है। नहीं तो आएंगे। देख ट्यूसडे, लास्ट 4-5 ट्यूसडे तो आपका ही नहीं है। हम सब ध्यान रखते हैं। कल आऊंगी दादा। आपको तो क्या बोलेगा अभी, कॉलेज का गर्ल है तो क्या करेगा हम। चलो जय नहीं आती। सच्चिदानंद। Yeah, हाँ Thursday. So time management. Let's do time management, okay? Jai Satchidanand. संतोष जय स्वामी जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोष